Hello dear students, welcome back to Science Wise. Today in this video we are going to study chapter 1 of class 5, that is growing plants for food. ठीक है बच्चों, in this video we will be going up to the topics, that is growing plants from seeds, growing plants from root and stem, and also leaf, and agriculture, right? So in this topic we are going to follow these topics, or we are going to cover all these topics. So keep watching the video. The exercise portion is also there on the channel of this Science Wise book. Clear? So I want to start the chapter with get ready exercise, right? यहाँ पे get ready exercise दिया हुआ है बच्चों. You have to identify the names of the food grains given over there, and you have to write C for cereal and P for pulses. Already these exercises are done in the video. You can go search in the playlist. You will get it definitely, right? So here first picture I can see is of kidney bean, and second of maize, third is the chickpea, and fourth is of wheat. This is a moong dal and rice. So can I say all these are the food grains? Say yes or no. So the answer is yes. These all are the food grains, and we get all these food grains from plants. ये सारे ही क्या हैं बच्चों? ये सारे हैं food grains, और ये food grains हमको कहाँ से मिलते हैं? We all get these food grains from plants, right? These मतलब these food grains we can call it as the seed also, right? हम इसको क्या बोल सकते हैं? सीड, यानी कि बीज भी हम इसको बोल सकते हैं. ठीक है? You all know about reproduction. What is reproduction? Reproduction is the process of producing offspring of same kind is called as reproduction, right? We can grow new plants from these food grains or seed. ठीक है? We can grow the new plant from seeds, right? Now let us learn about it in detail, that how can we produce the new plant from a seed. Clear? So when we are going to cover up this chapter, we should know what is a seed. ठीक है? We should study about seed also. So the topic is growing plant from seed. Most of the green plant bear flower. Flower change into fruit. Then fruit change into seed. ठीक है? Not change, we can say fruit contains seed which under favorable condition grows into a new plant. ठीक है? क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा, वो क्या, उनमें क्या होता है? फ्लावर होते हैं. ठीक है? अब जो फ्लावर होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं? फ्रूट में. ठीक है? फ्रूट में जब फ्लावर चेंज होगा तो उसके अंदर क्या होते हैं? फ्रूट के अंदर होते हैं सीड्स, और यही जो सीड्स होते हैं, जब इनको फेवरेबल कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन मिल जाए जो उनके फेवर में हो, या जो उनको ग्रो कराने में हेल्प करे, ठीक है, तो वो किस में ग्रो हो जाते हैं? वो न्यू प्लांट्स में ग्रो अप हो जाते हैं, राइट? अब जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? बहुत सारे सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सारे सीड्स ग्रो नहीं होते. ठीक है? कुछ सीड्स ग्रो हो जाते हैं, कुछ सीड्स नहीं हो पाते. क्यों? क्योंकि वो एनिमल्स खा लेते हैं. कुछ सीड्स जो है वो हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है? कुछ सीड्स जो हैं वो हैवी विंड या हैवी रेन की वजह से, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो ऐसा होता है कि कुछ सीड्स ग्रो हो पाती है और कुछ सीड्स ग्रो नहीं हो पाती. ठीक है? तो यहाँ पे से इट करेक्ट दिया हुआ है, तो पहले हम ये पढ़ेंगे. एम्ब्रियो कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एम्ब्रियो. आप मेरे साथ प्रोनाउंस करिए बच्चों, एम्ब्रियो. देन कोटिलेडॉन कैसे पढ़ेंगे? कोटिलेडॉन. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड. अब जब हम सीड पढ़ रहे हैं तो हमको क्या पढ़ना है? उसका स्ट्रक्चर. तो सीड का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 3 पार्ट्स आप लेके चलें कि 3 उसमें डिवाइडेड है. फर्स्ट इज द एम्ब्रियो. ठीक है? ये वाला जो पोर्शन हो गया आपका, ये कौन सा पोर्शन है? ये आपका एम्ब्रियो हो गया. सीड कोट. सीड कोट, ये ब्राउन लाइन आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो ब्राउन लाइन है ये क्या है? आपकी सीड कोड है, यानी कि ये सीड का कवर है.
ठीक है। और ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये क्या है बच्चों, ये कॉटलिडॉन है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका फंक्शन क्या है। तो एम्ब्रियो जो है वो क्या है बच्चे, बेबी प्लांट है जो सीड के अंदर होता है। ठीक है, ये बेबी प्लांट है, ये उसकी लीव्स दिख रही हैं आपको, एम्ब्रियो की लीव्स, यानी कि बेबी प्लांट की लीव। कॉटलिडॉन क्या है, कॉटलिडॉन जो है वो फ्लैशी सीड लीव है। कॉटलिडॉन क्या है, सीड लीव है, और सीड लीव है इसलिए वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, जिसकी वजह से जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है या जो आपका न्यू प्लांट है उसको क्या मिल पाए, न्यूट्रिशन मिल पाए। ठीक है। सीड कोट, सीड कोट क्या होता है, सीड कोट जो है वो थिक और हार्ड आउटर कवरिंग। ठीक है, क्या है सीड कोट, इट इज अ थिक एंड हार्ड आउटर कवरिंग, ये आपका सीड कोट हो गया। और इसका काम क्या है, सीड कोट जो है वो आपके एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखता है, किससे, हार्श वेदर कंडीशन से। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, और इस एक्टिविटी में आपको समझाया गया है कि जब आप किसी भी सीड का सीड कोट निकालेंगे, ठीक है, आप क्या करना, आप दो जार ले लेना। ठीक है, एक ले लेना आप जार ए और दूसरा ले लेना आप जार बी। ठीक है, एक में आप डाल दीजिएगा चिकपी। ठीक है, ए वाले में आप डाल दीजिए चिकपी और बी वाले में आप डाल दीजिए मेज। क्या डालेंगे आप, मेज, है ना। ये दो सीड्स आप ले लीजिएगा, एक में आप डालिए चिकपीस और दूसरे में मेज, और इसको भर दीजिए आप पानी से। ठीक है, क्या करेंगे आप, पानी से इसको भर के कुछ आवर्स के लिए आप रख दीजिए। ठीक है, जब आप इसको रख देंगे तो क्या होगा, सीड जो है वो स्वेलन अप हो जाएंगी। अब जब वो सीड स्वेलन अप हो जाए तो आप क्या करिएगा, उसका जो सीड कोड है वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, दोनों का सीड कोड निकल जाएगा। ठीक है, तो सीड कोड निकालने के बाद आप करिए, आप उसको स्प्लिट करिए। चिकपी तो जो है वो सीड कोड निकलने के बाद अपने आप ही 2 क्वाटलिडॉन्स में स्प्रेड अप हो जाएंगी। ये आपके क्वाटलिडॉन है। ठीक है, चिकपी हुआ, ग्राम हुआ, आपकी जो इच्छा हो आप ले लीजिए, तो वो आपका जो है 2 क्वाटलिडॉन में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन जब आप मेज का सीड कोड निकालेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, आपको एक ही क्वाटलिडॉन मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इस एक्टिविटी से ये बताना चाह रहे हैं कि सीड्स जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है डाइकॉट सीड और दूसरी होती है मोनोकॉट सीड। ठीक है, और जो एक क्वाटिलोडॉन वाली सीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉट, और जो 2 क्वाटिलोडॉन वाली सीड होती है हम उसको बोलते हैं डाइकॉट सीड। ठीक है, अब जो मोनोकॉट सीड है उसका एग्जाम्पल है व्हीट, राइस एंड मेज, और जो आपकी डाइकॉट सीड है उसका एग्जाम्पल है ग्राम, बीन और पी। राइट, ये आपके डाइकॉट सीड के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है, द सीड विथ 2 कॉटलिडॉन इज कॉल्ड डाइकॉट सीड, अ सीड विथ 1 कॉटलिडॉन इज कॉल्ड मोनोकॉट सीड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट इज से इट करेक्ट, जर्मिनेशन। कैसे पढ़ेंगे, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या है, जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि जो सीड है वो क्या करता है, डेवलप हो जाता है न्यू प्लांट या फिर सीडलिंग में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन भी होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ये आपने मेरे ख्याल से आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, तो इसको इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं लग रही है मुझे, है ना। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, आप जल्दी से इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड। ठीक है बेटा, अगर आप बोलेंगे कि मैडम आप जर्मिनेशन पे भी आप बनाइए वीडियो तो मैं आपके लिए बना दूंगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो वो आप कर सकते हैं। राइट, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड पे मैं आपके लिए इस वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट आप बोलेंगे तो मैं पक्का डेफिनेटली बना दूंगी एक वीडियो उसके लिए भी। नाउ से इट करेक्ट, फर्स्ट वर्ड इज स्कैटरिंग, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग। क्लियर, नेक्स्ट इज डिस्पोजल, कैसे पढ़ेंगे बच्चे, डिस्पर्सल। ठीक है, डिस्पर्सल। देन एजेंट, ठीक है, तो एजेंट को कैसे पढ़ते हैं,
एजेंट। क्लियर? अब डिस्पर्सल का क्या मतलब होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, डिस्पर्सल जो है उसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड डिस्पर्सल। किसी भी चीज का बिखरना डिस्पर्सल होता है, लेकिन हम सीड डिस्पर्सल की बात कर रहे हैं, तो सीड का बिखरना इज नोन एज डिस्पर्सल। ठीक है, और ये जो डिस्पर्सल ऑफ सीड है ये किसके थ्रू होता है, ये डिस्पर्सल जो है ये बहुत सारे एजेंट्स होते हैं इसके, और उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। जैसे कि एक एजेंट है आपका विंड, दूसरा है वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोजन ऑफ फूड। क्लियर? ये सारे आपके डिस्पर्सल हो गए। अच्छा, अब ये बताइए कि डिस्पर्सल जरूरी क्यों है, हालांकि एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, व्हाई इज डिस्पर्सल ऑफ सीड इंपॉर्टेंट। आप जब क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे ना तो ये क्वेश्चन आएगा। तो डिस्पर्सल क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर सारे सीड्स एक जगह ही ग्रो अप हो जाएंगे, एक जगह ही सीडलिंग्स बन जाएंगी, बहुत सारे सीड्स जो है वह एक जगह जर्मिनेट हो जाएंगे, तो क्या होगा, वहां पे जो फूड और वाटर की सप्लाई है यानी कि सॉइल भी है तो लिमिटेड है। अब इतने सारे सीड्स अगर जर्मिनेट हो गए वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, वहां पे कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, स्पेस, वाटर, एयर, विंड, न्यूट्रिशन, हर चीज के लिए कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। किसके बीच में, सीडलिंग्स के बीच में। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे सीडलिंग्स ऐसे होंगे जो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए डिस्पर्सल ऑफ सीड बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो अब हम डिस्पर्सल बाय विंड की अगर हम बात करते हैं, तो विंड से जो सीड्स डिस्पर्स होती हैं वो आपकी हो गई कॉटन, ठीक है, डेंडलियन, स्क्वैमोर, ये जो सीड्स हैं, डेंडलियन हो गया आपका, कॉटन हो गया, स्क्वैमोर हो गया, ये जो सीड्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि जो टफ होता है वो किसका बना हुआ होता है, फाइन हेयर का। तो जब विंड आती है तो ये जो सीड्स हैं ये विंड के साथ उड़ जाते हैं इधर उधर। ठीक है, इसका मतलब सीड्स आर इजीली कैरीड अवे बाय द विंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कैसे होते हैं, इसके सीड्स बहुत ही लाइट होते हैं और विंग्स भी होती हैं और हेयर्स भी होते हैं उनमें, तो ये आराम से विंड के साथ चले जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से इसका डिस्पर्सल होता है। अब स्क्वैमोर की अगर हम बात करें तो स्क्वैमोर कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर शेप का दिख रहा है ना, लुक लाइक मिनी हेलीकॉप्टर। और जो स्क्वैमोर के ये जो विंग्स है ना, ये क्या करते हैं, ये जो इसकी सीड है इसको मूव कराने में हेल्प करते हैं। डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर के थ्रू डिस्पर्सल होता है किसका, लोटस के फ्रूट का। लोटस फ्रूट है, उसके अंदर ये छोटे छोटे से क्या दिख रहे हैं आपको, सीड्स दिख रहे हैं। ठीक है, कोकोनट का, ये बेटा ये कोकोनट का एक क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कोकोनट का जो सीड है वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होता है। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो कोकोनट है वो कैसा है, अंदर से हॉलो है, इट इज हॉलो इन द सेंटर, और इसका जो शेल है वो कैसा होता है, ब्राउन होता है, हार्ड शेल होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको, सीड को। और ये किससे कवर अप होता है, इसका शेल फाइब्रस हेयर से कवर अप होता है, जो कि बहुत लाइट होता है और जो पूरे कोकोनट को बहुत लाइट बना देता है, हालांकि कोकोनट अंदर से भी हॉलो है। दिस हेल्प्स द कोकोनट फ्लोट इजीली ऑन द वाटर, और इसीलिए ये जो कंडीशंस हैं कोकोनट की, ये कोकोनट को फ्लोट करने में हेल्प करती है वाटर के अंदर। ठीक है, और इसीलिए जो कोकोनट है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है और अपने पेरेंट प्लांट से दूर जाके जर्मिनेट हो जाता है। क्लियर, इतना क्लियर हुआ बच्चे। अब डिस्पर्सल बाय एनिमल, एनिमल्स के थ्रू भी डिस्पर्सल हो रहा है। डिस्टेंट, एक वर्ड दिया हुआ है डिस्टेंट, जिसका मतलब होता है फार अपार्ट, बहुत दूर, राइट। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि आपका कुकलबेरी हो गया, टाइगर क्लॉज हो गया, है ना, इनके जो सीड्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। तो जब हम हमारे कपड़ों में ही चिपक जाते हैं ये सीड, और जब हम कहीं कपड़े वपड़े झटकार देना तो ये सीड वहां गिर के जर्मिनेट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे कपड़ों के साथ वो सीड चिपक रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि ये जो सीड्स होते हैं ये एनिमल के फर के साथ भी चिपक जाते हैं, क्लॉथ्स ऑफ द ह्यूमन के साथ भी चिपक के
बहुत दूर चले जाते हैं पेरेंट प्लांट से और वहां जाके जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब कुछ जो प्लांट्स हैं जैसे कि आपका मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, बेरीज, इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? जूसी फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस फ्रूट को खा लेते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट दिस फूड। ठीक है, और जो इनके सीड है वो हम इधर उधर फेंक देते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं। और बर्ड्स क्या करती हैं? बर्ड्स जो है वो ये जो सीड्स हैं इनको स्वालो अप कर लेती है, मतलब सीड सहित फ्रूट खा लेती है। ठीक है, और जब ये खा लेती है तो क्या करती है? एक्सक्रीट, मतलब जब वो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालती है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपिंग, तो ये सीड्स भी इनकी ड्रॉपिंग के साथ निकल जाते हैं बाहर और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद ये जर्मिनेट हो जाते हैं वहां। फिर बर्ड्स की ऐसी आदत भी होती है कि वो जब भी कुछ खाती है वो अपनी बीक को क्या करती है? बार्क के अगेंस्ट रब करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो सीड है वो जमीन पे गिर जाता है, और जमीन पे गिरने के बाद वो जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, सीड। ठीक है, वो का मतलब सीड है यहाँ पे। क्लियर? अब एक्सप्लोजन से डिस्पर्सल होता है। जो प्लांट्स है जैसे कि बाल्सम, पी, टमरिंड एंड लेडी फिंगर, ऐसे जो प्लांट्स हैं इनके जो फ्रूट हैं जिसको हम पोड्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनके फ्रूट्स को? पोड्स। तो जब ये पोड्स क्या होते हैं? ड्राई हो जाते हैं, तो ये एक्सप्लोड मतलब फट जाते हैं। ठीक है, खुल जाती है, इनके कवर जो होते हैं वो खुल जाते हैं, और इनके अंदर जो सीड होता है ना वो बिखर जाता है बहुत सारे डायरेक्शन में। अब बिखरने के बाद क्या होता है कि ये जो सीड है ये सूख जाता है, और सूख के ये सीड फिर जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है बच्चे, ये आपका पार्ट 1 हो गया है ना। यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम पूरा चैप्टर कवर अप करेंगे तो। सो आई होप you have understood from part 1 of growing plants for food this chapter. I hope so you have got many things from this chapter, from this part. If you want second part, just stay connected to Science Wise for more such videos. If you have any doubt bachcho, you can mention your doubt in comment section. Your doubts are most welcome. Stay connected to Science Wise. Thank you dear students.